Okay, today's first, what are the things we are going to learn today? First is revision of HTML, the basic thing that we have learned before. Second, second is div. What is the div element and with with anchor tag. Third is we are going to learn with what is ID and class in HTML attributes. Fourth, we are okay, wait, one thing. We are going to build something. Like, what is the approach to build something? How we are going to build a web page after seeing the web page. Okay. And last, I am going to home task. And you have to do this before you are coming for the next class, else we have to take serious action on you, as if you are not doing anything, then you are going to learn anything. Okay, so but as first I have said, we are going to start with first agenda, which is revision. Okay, so first I will ask, what is HTML? Anyone, can you say what is HTML? just mic on करो और बोलो. कोई भी बोलो. Anyone, what is HTML? What is HTML? HTML is Yep. a language by which we can Nandita, create the structure. Nandita, next, H, we have already done it H, in previous day, so you can just keep quiet for now. Let others answer. Okay. Manage. HTML um provides means through the coding of HTML we can develop the front end of the web page, means the structure or layout, means where which thing can be placed or which can be showed where in a web page. That thing can be done with the help of HTML. Which Your buttons to be shown where. answer is partially correct. Anyone else? Nitya, Yeah, HTML are the building blocks of the web, um, just one line, one word. Like, and it tells us the meaning and structure of the web content. correct. This is the answer I am looking for. Nandita, now your answer. Nandita, hello. हाँ तो बोलছি HTML is a language by which we can create the structure of an web page, by which we add photos and various types of structure format. Okay, your both the answers are correct. So, Okay. we have to know the basic thing. What is HTML? So, HTML, if we are going to ask in simple words, what is HTML? HTML are the structure of a web app, web page actually. Okay. Just to create the structure. हम बोलते हैं ना कि एक skeleton के बिना एक
आदमी नहीं हो सकता, एक बॉडी स्केलेटन के बिना नहीं हो सकता। वैसे ही सेम है, अगर हम वेबसाइट में HTML नहीं लिख रहे तो वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर that we have to write to create a website. Okay, that's why it is the core thing that we have to learn first before building a real-time website. Okay, we have done with the definition. Okay, so uh, version, what is the current version we are using? HTML5. Correct, HTML5. Okay, now what is the extension of HTML? .html or .htm. Okay, when you are talking about HTML, it's a different thing. Okay, it's Okay. just HTML. uh, some basic tags that we have learned or you can remember, any tags तुमको क्या Paragraph लग? tag. One is paragraph tag, second, Heading H1, H2. okay, heading tag, one Title, dot, division, body, body tag, Strong and strong. strong, okay, strong, and Head. EM, EM tag. division. and one more, just Head. one, head. Okay, now as we all know, a tag has to be close. So, what are the tags that we have to close and we don't have to close? Like, if we are saying a paragraph tag, we have to close this tag or not? Yes. Okay, we have to close this tag. Tell me a tag which we don't have to close. BR. BR. Correct. Another for this, another for this, which have to close. Head Anyone? tag, body tag that need to be closed. Okay, head tag. As we are saying, we are using head tag. So, can you say exactly what is the use of head tag? हम हेड टैग से क्या करते हैं, कुछ किसी को पता है? नंदिता, you have to be quiet for some time. I will ask you. If you know the answer, just raise your hand and keep quiet. Let others answer because we have done this before the class. By head tag, we Wait, 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 create the wait, container of wait, the HTML. wait. Let others answer. नित्या, तुमको आता है? नहीं भैया. तिथि, तितली, No. सृजित, এই- এটা দিয়ে ওই ক্যারেক্টারের মানে টাইটেল থাকে এটার মধ্যে নাকি? ঠিক আছে। নন্দিতা, এবার তুই আনসার দে। হয়তো এইটার মাধ্যমে হেড ট্যাগের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কন্টেনারটা এইচটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজটা কন্টেনারটা ক্রিয়েট করি। আমি एग्जैक्टली এটা বলেছিলাম, मैंने यही बोला था पिछले क्लास में। I guess no, I haven't said the same thing. So let's talk about head tag. One sec. Head tag. Okay. So why it is important? Why we need to do this? Okay. Why it is important? Because it will load the pre-linked files, or it will decide the character
or it will decide the metadata of a web page. So when you see there is a title, right? When we are giving a title called portfolio, that means when we are going to load our website, like if you see we are loading website here, and think this is a browser and we have our website here, and this is the tab, so this will go here, this will be written over here. Okay, so whenever we are giving a head tag, we are going to give 4 to 5 things over here. First are the things what we are linking, like the libraries इन तुम लोग को सी पता है ना, सी लैंग्वेज पता है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, हम हेडर टैग को पहले लेते हैं फिर बॉडी लिखते हैं, करेक्ट? सो बेसिकली हेड का मतलब वही है, अगर हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन कहीं से ले रहे हैं, उठा रहे हैं, जैसे कि अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है, गूगल फॉन्ट से कुछ लेना है, तो उधर एक लिंक बोल के कुछ होगा, उसको हम हेड में देंगे ताकि ताकि हमारा वेबसाइट लोड होने से पहले वो लोड हो जाए, ताकि हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाए। समझ गए? जब हम CSS लिखेंगे तब हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे लिंक करने के लिए। दिस इज द मेन कॉज, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हेड टैग। एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? भैया हमको नहीं समझ में आया, रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं तुमको एक चीज करता हूँ, लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल। If we are going to search for Iron Man with something, okay. If we are going to search for Iron Man and if we are saying something, so when we are going to inspect this, so you can see here, तुमको सबको दिखेगा एक चीज ऊपर, इसको बड़ा कर लेंगे, ब्लैक क्यों कर, ओके। ये देखो बॉडी टैग है, ये टैग है। अगर हम हेड टैग को आराम से अच्छे से देखें तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे स्क्रिप्ट है जो क्या कर रहा है, एक जावास्क्रिप्ट को वो पुल कर रहा है ताकि पूरे जो उनको वेबसाइट दिख रहा है उसमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो जाए। ये हेड टैग है। अगर तुम देखोगे अच्छे से, इधर आयरन मैन 2008 फ्लेम ये सब लिखा है। अगर तुम इधर देखोगे टाइटल, टाइटल सेम है, दिख रहा है? अगर मैं एक काम करता, अगर टाइटल को इधर नहीं रखता तो इधर पूरा खाली जाता ये वाला। जैसे मैं एक चीज भी कर सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, ये देखो चेंज हो गया, ठीक है? ये एग्जैक्टली इधर देखो और भी देखोगे तो ये देखो, ये मेटा मेटा लिंक दिया है, कुछ कंटेंट क्या है, मेटा विकी, कुछ वर्जन्स वगैरह दिए हैं मेटा डेटा का, फिर कुछ प्रॉपर इमेजेस दिए हुए हैं जो उन्होंने बुलाया है। अगर हम ये वाला लिंक देखेंगे, ये लिंक क्या देगा मेरे को, ये देखो ये वाला, इस वाले को उन्होंने हेड टैग से इंपोर्ट कर लिया है। अब ये लोग यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बॉडी में। अगर हम इधर जाएंगे, होवर करेंगे, इधर देखो वो लोगों ने SRC पे दे दिया अपलोड। अच्छे से देखोगे तो इधर डबल स्लैश है। डबल स्लैश का मतलब क्या है, उन्होंने उनके फाइल से उठाया है, ये उनके सर्वर से उठाया, ठीक है? You got the point, what is the use of head tag, what is the importance of head tag, or I have to say something like other thing? नित्या समझ में आया कि मेरे को और भी अच्छे से बोलना होगा? समझ गए। पक्का? हाँ। ओके फाइन। और भी अच्छे से समझ में आएगा जब तुम खुद से करोगी, तो दिक्कत नहीं है उतना। बाय द वे, तुम इधर किसी भी चीज को टेम्पर कर सकते हो,
इधर जैसे मैं इधर देखूं तो इधर आयरन मैन की जगह मैं अपना भी नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, और जब तक तुम रिलोड नहीं करोगे ये तब तक सेम ही रहेगा। दिस इज द थिंग दैट वी कैन प्ले विथ, बट अच्छे काम के लिए यूज करना, बुरे काम के लिए नहीं। स्क्रीनशॉट्स आर द गुड एग्जांपल। नेवर माइंड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमने क्या क्या देखा, हमारा हेड टैग का क्लियर हो गया। ओके, हेड टैग खत्म हुआ। अनदर एग्जांपल ऑफ लाइक जो टैग हम क्लोज नहीं करेंगे, उसका कोई और एक एग्जांपल दो। संबिता, ऐसा कोई टैग जो हम क्लोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। भैया VR टैग क्या होता है? बी आर ट्रैक मतलब अगर तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है जैसे हेलो, हेलो आई एम अभिरो, एंड अगर स्वस्तिक। ओके, अगर हम इधर इधर अगर बी आर लगाएंगे, सोचो कि एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है। ये अगर मैं बी आर नहीं लगा रहा हूं इधर, तो ये रेंडर बस ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर मानो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर सोचो कि मैं इधर एक सेकंड रबर लेता हूँ, अगर मैं इधर बी आर लगाता हूँ तो क्या होगा, ये जब भी रेंडर होगा तब ये ऐसे दिखाएगा, हेलो आई एम, देन नेक्स्ट लाइन में अभिरूप दिखाएगा। यू गॉट इट? व्हाट इज द यूज ऑफ बी आर टैग? नित्या एंड एवरीवन? हाँ भैया। ओके, सो मैं बोल रहा था कि अगर हमारे पास दो टाइप के टैग हो सकते हैं, एच आर टैग, करेक्ट। वन मोर इज एच आर टैग. So these are the tags which we have to close if we are using, and these are the tags we don't have to close explicitly. Okay, these are the tags we don't have to close explicitly. These are the two simple things that we have to make it in our head. So one more thing about that, the tags we don't have to close, we need to do this. So this says it is a auto close tag, like we are not closing it. This is a good practice. If you are doing this, it's a not good practice. You have to do this. Okay, so that's all about tags and some revisions. Now we are going to talk about good, that the thing it is a good thing that you are going to use in daily life. Okay, when you are building a web page. So what is div actually? Div are the containers. These are the containers where we are giving multiple codes. Okay. So जो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ कार्ड है, so this is a example of a card. Okay,
and we have to build this. We have to build this. So how we are going to build? Okay, with the use of this div. It will make us easier to implement this. So first, we are going to learn some basic CSS that I need to make you understand before implementing this card. One thing is border. It's a very basic CSS which will be 2px, 2 pixels. Okay, what is 2 pixels? One second. One second. Okay, so 2 pixel is the border radius. Sorry, border. So what is the line length, which is 2 pixel? Okay, and then we are saying it's solid because it's using a direct, okay, lines, and which is black in color. We are going to use this CSS to implement this. Okay, you got the point? Just make it in your mind. So to build this, we have, as we can see, like this is a card, this is a component. So if you see, the outer one is this, the inner one can be this, and this can be the another component. You can see we have three different components. Okay, and if you are saying, like, we can say this is a div, this is a div, this is a div. If we are doing a hierarchy, this will be first and this two will be in same form second. So after this we can say, हम बोल सकते हैं ऐसा कि ये वाला div पहले होगा, उसके ऊपर ये वाला आएगा, उसके ऊपर ये वाला आएगा, तो फिर देखो जाए तो अपना ये वाला कंप्लीट हो रहा है. सही बोला? You all agree like this will work? Hello, you got the point of div, why it is important. Okay, वापस बोलना, कुछ बोल रहे थे? नहीं, जस्ट यू आर सेइंग ओके. ठीक है, ठीक है, चलो. ये वाला कार्ड हम जब CSS कर रहे होंगे तब इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी के लिए हम ये वाला नहीं कर रहे हैं. आई जस्ट यूज दिस एग्जाम्पल बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड वाई वी नीड div. सो div किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, अभी बोल दो. क्योंकि आज जो जो भी करेंगे, आज से हम जो भी करेंगे वो एक div के अंदर ही करेंगे. सोचो हमारे पास एक सोचो हमारे पास एक पूरा वेब ऐप है, उसके अंदर एक पेरेंट डिव होगा जो पूरे वेब पेज को दिखाएगा कि ये डिव है. दिस इज गोइंग टू बी अ डिव. अंडर द डिव वी आर गोइंग टू क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, अब बोलो, सबको समझ में आ गया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? ओके. So our next agenda is ID and class in HTML attribute. Okay, हम HTML attribute में what is ID and class देखेंगे. ID actually देखा जाए तो ID and class are the elements. Okay, these are the elements where we are using it. Sorry, it's not the element. Are the attributes. Okay. सो जब भी हम कुछ div लिखेंगे, या सोचो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, p टैग से. p टैग के अंदर हम इधर id लिख सकते हैं और p टैग के अंदर हम
क्लास क्लास लिख सकते। ओ सॉरी, माय पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया, रुको एक सेकंड, let me see one thing, it work, yes it's working, class, okay, so इसका डिफरेंस क्या है ये समझते हैं पहले। आईडी क्या करता है, दिस गिव्स अस अ यूनिक थिंग, यूनिक नेम, ऐसा नाम देगा ये जो हम पूरे HTML में कभी सेकेंड टाइम यूज नहीं कर सकते, दैट विल गिव यू एरर, ओके, एंड दिस आर रीयूजेबल। अब सोचो हम इन दोनों की यूज क्यों करते हैं, टू गिव CSS और JS in specific elements। सोचो हमारे पास एक पूरा HTML का पेज है जहां पे हमारे पास मल्टीपल बटन्स है, so if you know button is also a tag, okay, we have to close। तो अगर हम बटन के ऊपर या PA जो भी है उनके ऊपर कुछ CSS लगा रहे हैं कि मेरे को इसका कलर ब्लू चाहिए, इसका कलर येलो चाहिए, तो हम यूज करेंगे क्लास, क्योंकि वाई वी आर यूजिंग क्लास, हम एक क्लास को मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स में लगा सकते हैं। आईडी इज मोस्टली यूज टू गिव जेस जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड आईडी हम यूज उतना नहीं करेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब आईडी बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब बोलो क्लास किसको किसको समझ में नहीं आया, क्लास आईडी, who are not getting the point, what is the thing। ये बटन वाले पार्ट के बारे में आप क्या बोले थे? मैं बोल रहा था छोड़ो बटन का छोड़ दो, बटन छोड़ दो, बटन इज समथिंग लाइक एक बटन होगा, ओके, इसी का देखो, ये टैग कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर हम आईडी क्लास दोनों लगा सकते हैं, एनी टैग, बट तुम बोलोगे कि मैं बॉडी टैग में आईडी दूंगा, क्लास दूंगा, हेड टैग में दूंगा, अगर तुम देख पा रहे हो कि फायदा है तो तुम दे सकते हो, नहीं तो तुम नहीं दे सकते दोगे, ठीक है, दैट विल मेक इट हैवियर ऑन यू कैन से। अब बोलो कुछ दिक्कत है तुम लोग को इसमें, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, येस और नो। মানে দাদা আইটিআর ক্লাসটা আমরা ইউজ করি যাতে সিএসএস বা জাভাস্ক্রিপ্টের যে ফাংশনালিটিস গুলো সেগুলো আমরা মানে দিতে পারি ওয়েব পেজের যে ফ্রন্ট এন্ড গুলোতে আছে সেগুলো যাতে ফাংশন গুলো কাজ করে ওদের। কারেক্ট কারেক্ট, এটা তখনই ইউজ হবে যখন আমরা একটা সিএসএস ইমপ্লিমেন্ট করব বা জাভাস্ক্রিপ্ট ইমপ্লিমেন্ট করব, ঠিক হুম। আছে, যখন আমরা বেসিক স্ট্রাকচারসও করব তখনও তুমি কিছু লাইক সিমিলার নামস দিতে পারো। ভাবো একটা আমার কাছে, আমি তোমাকে একটা প্রাইম এক্সাম্পল দিচ্ছি ক্লাসের, আইডি আর ক্লাসের ডিফারেন্স তো বুঝেই গেছো, ঠিক আছে, সো হুম। এটা আমার কাছে একটা ক্লাস কন্টেনার আছে যেটার মধ্যে মাল্টিপল কার্ডস আছে, তুমি কি প্রত্যেকটা তোমরা तुम सब क्या सारे कार्ड्स को बनाओगे इंडिविजुअली, तुम पहले ये वाला कार्ड बनाओगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसा करोगे नहीं ना, तुम इसी कार्ड में जो जो चीज लगाए हो ये इन कार्ड्स में दे दोगे ताकि हमको उतना लिखना ना पड़े, सही बोला, यही হুম। करोगे, तुम्हारा अप्रोच ये रहेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लास, व्हेन वी आर यूजिंग क्लास वी कैन गिव सेम क्लास टू दिस दिस एंड दिस, तो हमारा হুম, सारे चीज सेम हो जाए। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मैं चाहता था कि तुम लोग का ये वाला खत्म हो जाए, डिव वाला पार्ट एंड आईडी। चलो इधर तक कुछ दिक्कत है, वी हैव डन, वेट वन सेकंड, वी हैव डन दिस दिस एंड दिस, एनीथिंग विथ दिस थ्री,
दैट तुम लोग को अभी लग रहा है कि नहीं होगा, मेरे को थोड़ा ওই दिक्कत এটা है। কি করা দাদা এ এ দিয়ে যেটা আছে Okay, I forgot এলিমেন্ট to mention A. So basically A is a anchor tag. এক সেকেন্ড আমি বলছি। सो তোমরা যখন तुम सब जब एक वेब पेज में देखते हो तब तुम लोग को कुछ ऐसा दिखता है। वेट वन सेकंड, मैं दिखाता हूँ। सोचो हमारे पास आयरन मैन का ही वो वाला है, ठीक है। ये देखो, हम जैसे ही ओवर कर रहे हैं, ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये हमको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर रहा है। यही सेम चीज करता है हमारा एंकर टैग। ओके, हमारा एंकर टैग यही करता है। अगर हम इधर google.com लिखेंगे, वन सेकेंड मेरा एक कॉल आ रहा है। हेलो एवरीवन। ओके, सो जैसे हम देंगे इधर google.com, तो जब भी हम क्लिक मी में क्लिक करेंगे वो हमको इधर पहुंचा देगा। एंकर टैग समझ में आ गया? आप कोई दिक्कत है? ओके, वी आर क्लियर विद दिस थ्री। now we are going to give you I'm going to give you a practical example of each and everything that we have learned today. Okay, चलो थोड़ा देखा जाए। आज आज तुम लोग मेरे को बोलोगे कि बनाना क्या है, ठीक है। हेलो एवरीवन। ओके, चलो आज तुम लोग मेरे को बोलो बनाना क्या है, मैं तुम लोग का अप्रोच दिखाऊंगा। हेलो, सब हो ना इधर? बताओ क्या बनाना है आज। तुम लोग दो मेरे को एक बेसिक थिंग जो तुमको देखना है कि कैसे बनता है, ताकि तुम लोग मेरा जो टास्क मैंने दिया था वो कंप्लीट कर पाओ। पिछले दिन का मैं नहीं करवाऊंगा वो सेम थिंग, कुछ और दो। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो পোর্টফোলিও, আচ্ছা। পোর্টফোলিও অলরেডি আমি আগের দিন করে দিয়েছি, and I have sent you the basic code and you have to build the other thing, something different. Okay, let me give you তাহলে a thing. প্লিজ রিপিট করো না, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছিল, কিছু বুঝতে পারছিলাম না।
কোনটা থেকে রিপিট করব? কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি তোদেরকে যেটা অ্যাঙ্কার ট্যাগ পড়েছিলাম সেম সেই জিনিসই করালাম আজকে আবার। ओके ठीक है, चलो पहले हम div का काम देख लेते हैं. What is actually div? Let me give it a style that I have given you. Border 2 pixel, solid, and of black color. Okay, this is a thing, and we are going to give it a height of 100 pixel and width of 100 pixel. Okay, and if we are going to go live, it will something look like, wait 1 second, it will look something like 8080, I guess. No, sorry, it will go 55. Okay, it's revision class 2. समझ में आ गया div क्या करता है? बस इस div से हमने एक स्क्वायर बना दिया, समझ गए? हेलो, चलो div का काम तो समझ गए अब मैं तुमको एग्जैक्टली दिखाऊंगा अगर हमको कुछ बनाना है, like if we are going to build something with inside this body, we are going to use a single div, and inside that div we are going to build everything. And if you want to have a like example, let me go to some website, like let me go to mine website even. And if we are going to inspect this, and if we are going to click over here inside this div, you can see my full website is done in one div. मैंने पूरा वेबसाइट बनाया ना एक एक div के अंदर, जिसका आईडी है रूट. समझ गए सब कि हमको वेबसाइट बनाना कैसे? ये तो हो गया एक वेबसाइट. अगर हम यूट्यूब में भी जाएंगे, अगर हम यूट्यूब को ही अगर इंस्पेक्ट करेंगे और अच्छे से देखेंगे, लाइक मैं बॉडी को, ये लोग क्या किए, इन लोगों ने बहुत सारा कुछ यूज़ किया है. नेवर माइंड, अगर और सिंपल देखा जाए, आउटलुक चेक करते हैं, ये तो बहुत वो हो जाएगा. दूसरा किसी का, हाँ एडमस का ही चेक करता ना, यूएमएस का. बाय द वे इन्होंने पीएचपी में बनाया तो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है. हाँ, इनका बॉडी देखते हैं. इन्होंने सेक्शन यूज़ किया है, ठीक है. इन्होंने सेक्शन के अंदर एक डिव क्लास लिया है, उसके अंदर पूरा बनाया है. ये सेक्शन एंड डिव, ये दोनों सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है. सेक्शन से तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस है. जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, जैसे एक हीरो पेज है, अगर तुमको हीरो पेज देखना है तो एक वेबसाइट दिखा देता हूँ. ये देखो, ये जैसा हीरो पेज है, इसमें अबाउट एक सेक्शन है, सर्विस एक सेक्शन है. सेम हमारे पास सेक्शन हो जाएंगे एक डिव के अंदर. मैं तो डिव के अंदर ही बनाता हूँ. एंड मेनी प्रोग्रामर्स आर डूइंग इनसाइड अ डिव ओनली. It's a best practice to do inside a div. Like when you are going to create something in React, you will see हमारे एक div के अंदर ही पूरा कुछ है, ठीक है. So this is the importance of div, and let's create a simple, what you can say, कार्ड बना देते हैं. थोड़ा बहुत कार्ड बनाते हैं, थोड़ा बहुत. Inside the card there will be a heading, Abhiro Kumar, okay, and this div have this Abhiro Kumar, then the paragraph tag, okay, and if we are saying, we can say
anchor tag. Let's give an example of anchor tag, and this will redirect me to www.google.com, and this is click me. देखो देखते हैं अब ये क्लिक में क्या करता है. ओके, ये ऐसे नहीं जाएगा, HTTPS आ जाएगा शायद से. কোশ্চেন ছিল बोलो. সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা লিখছো মানে ব্যাকএন্ডে যেটা করছো ওটা কি পাইথন নাকি জাভা কোনটা ব্যাকএন্ড লিখছি আমি? যেটা ওই ডক টাইপ এইচটিএমএল হেড মেটা কারসেট পারপাস যেটা This is not any programming language. What is the full form of HTML? Hypertext markup language. So how can you say it's a programming language? সেটা এমনি সিম্পল এইচটিএমএল It's a markup language. Hypertext markup language. It's a Okay. type of markup language. Okay. It's not a programming language, by the way. That's why it's so easy. I'm not saying programming languages are hard, but okay. So मैंने anchor tag समझाया था, तो जस्ट इधर क्लिक करोगे तो तुमको गूगल में रिडायरेक्ट कर देगा. हम कुछ भी दे सकते थे उधर. हम पेज का नाम भी दे सकते थे. जैसे अगर मैं इधर देखोगे तो ये अगर मैं contact us.html करता और इधर मैं एक सिंपल बना देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ contact us and let's give it a div inside h1 okay, contact us, and I am going to give the reference ./contact. okay. अगर अब तुम लोग इधर क्लिक करोगे तो तुमको किसी और जगह नहीं, मेरे एक दूसरे पेज में तुमको रिडायरेक्ट कर रहा है. ठीक है. तुम लोगों ने बहुत सारे पेजेस में देखा होगा, इधर एक ऑप्शन होता है ए टैग, एंड इधर तुम्हारे बहुत पेजेस देखे होंगे बैक टू होम, ऐसा कुछ बटन होता है ना. हाँ हाँ ऐसा एक बटन होता है. सो उधर क्या होता है, सिंपल लॉजिक है, ये बस पिछले पेज का रेफरेंस दे देते हैं. और अगर तुम ये देखोगे बैक टू होम, समझ गए? दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. अगर इसी को हम थोड़ा बहुत वो दे दें, स्टाइल दे दें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन none, and now if we click here you can see the underline is gone, and if we give a color to black, now you can see it's a basic one. never अब कोई बोल नहीं पाएगा कि ये मेरा एंकर टैग है. बोल, इसको देख के तुम बोल पाओगे ये एंकर टैग है? No. अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इधर आ गए. So these are the some basic inline CSS that we can write while doing HTML. Same here. So इधर अगर हम करेंगे तो ऐसा दिखेगा. और इस क्लिक मी को अगर हटा के हम थोड़ा कॉन्टैक्ट अस कर दें तो ये थोड़ा और अच्छा दिख जाएगा. सबको समझ में आ गया एंकर टैग डिव क्या होता है, क्यों यूज होता है और कैसा होता है? समझ में आ गया? हाँ Okay, so if you have said let's make a build a एक बनाते हैं कुछ पोर्टफोलियो टाइप का. ठीक है, तुम सबके रिक्वेस्ट पे एक और बना देता हूँ पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो के लिए पहले हमको क्या चाहिए, एक काम करते हैं, इसको एक आईडी देते हैं विच इज रूट, और यू कैन से आईडी बिकॉज हमारे पास एक ही डिव होगा जो जिसके अंदर सब कुछ लिख रहे होंगे. तो लॉजिक से देखा जाए हम वो रूट कभी और यूज़ नहीं कर पाएंगे पूरे में. ठीक है, हमारे पास कितने सेक्शन होंगे एक पोर्टफोलियो में?
एक अगर बेसिक पोर्टफोलियो देखा जाए तो उसमें क्या क्या होता है, चलो थोड़ा देखा जाए। एक पोर्टफोलियो में हमारे पास होता है अबाउट मी, अबाउट मी, फिर एडुकेशन आता है, फिर आता है स्किल्स, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, हेलो, इंटर्नशिप्स एंड ऑल, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वर्ड? ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। हम्म 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 नहीं, कुछ और भी बोलते हैं उसे, आई नीड द एग्जैक्ट वर्ड। experiences. यस, एग्जैक्टली, अगर हम उसका नाम लिखे तो दैट विल बी वर्क experiences. Then we have projects, and then we have what? Anyone knows? It can be your Some research papers. research paper if you are going for a research internship, or you are going to apply for uh, some research work in institution. You can go, and if you have, you can write. But for me, I don't have till date no research work, so I am going to write certifications. Then we can write इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उस सेक्शन। के अंडर ही तो सर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब स्किल्स से तो सर्टिफिकेशन। नहीं, एक्चुअली सर्टिफिकेशन एक अलग सेक्शन बनाना होता है। तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अप टू यू। some if you are not willing to give certifications, you can write this activities, leadership and activities, and then we can write awards and achievement. Clear? We can write this things. Work experience. So if we can see, these are the things that we have to write. चलो थोड़ा zoom in कर लेते हैं। हमको ये सेक्शन बनाना है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7। सो हम डिव कितना बनाएंगे? 7 डिव बनाएंगे। 7 7। 7 डिव के अंदर हम अपना कंटेक्ट लिखेंगे, ठीक है। चलो, पहला डिव, पहले डिव को हम क्या आईडी देंगे? अबाउट मी, ठीक है। क्लियर? आईडी कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, अब समझो। अगर हम देखेंगे तो ये डिव खाली है अभी, तो हमारा पहले अबाउट मी आएगा। सो लेट्स गिव अ हेड अबाउट मी। उससे भी पहले एक और चीज आएगा, विच इज, यू कैन सी, हेडर बोल के एक टैग होता है ना, हेडर बोल के एक टैग होता है। हेलो, हाँ। हाँ। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही है, तुम हेडर टैग को ऊपर भी दे सकते हो, मतलब डिप के बाहर भी दे सकते हो, अंदर भी दे सकते हो, अप टू यू। मैं अभी के लिए इसको हेडर के अंदर ही बाहर अंदर ही रखता हूँ, डिव के। इसमें एक क्या होगा, मेरा नाम होगा बड़ा बड़ा, ओके, ठीक। देन समथिंग इन द पैराग्राफ, लाइक माय एड्रेस, 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 देन फोन नंबर, मैं दे नहीं रहा, फोन नंबर एंड ऑल, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर तुम इसको मिड में भी कर सकता हो, मिड मैं स्टाइल दे सकता हूँ इधर, स्टाइल डिस्प्ले, सॉरी ऐसा नहीं, अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम नहीं, टेक्स्ट,
ये अपने से दे रहा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो ये बीच में आ गया। अब दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ ये मेरा रिज्यूमे है। चलो, अगर तुम्हारा हेडिंग ये वाला H1 में है तो तुम्हारा टेक्निकली ये H2 होगा। अबाउट मी में क्या होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, तो ये इधर मेरे को दे रहा था। तो अबाउट मी दिख रहा है, दिस कैन बी योर अबाउट मी पेज। अबाउट मी में और कुछ ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता। सो दिस कैन बी योर वन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन विल बी योर ID ऑफ एडुकेशन। ओके, सो तुम लोग को मैंने लिस्ट टैग पढ़ाया है। तुम लोग को पता है लिस्ट टैग क्या होता है? पहले ना, पिछला। नहीं भैया। ओके, चलो नहीं पता। लिस्ट टैग देखते हैं, लिस्ट टैग देखते हैं। चलो, एडुकेशन के अंदर मेरा एडुकेशन पहला लिखते हैं एडमस यूनिवर्सिटी। सो एडमस तुम देख सकते हो कि एडुकेशन के अंदर मैं एडमस यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। एंड दिस कैन बी अ ड्यूरेशन ऑफ 2022 से 2026। ओके, एंड इसके अंदर मैंने कितना मेरा CGPA है और करंट SGPA है, मैं ये दो चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम UL लिखेंगे। व्हाट इज UL? UL इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट, लाइक बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट समझते हो ना तुम लोग? और इसी के अंदर हम लिखेंगे LI, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर लिख सकते हैं हम करंट SGPA, करंट SGPA ऐसा लिखेंगे। और एक होगा करंट CGPA। ओके, दिस दिस विल बी योर लिस्टिंग। लिस्टिंग समझ में आया तुम लोग को या वापस समझाना होगा? हम्म। लिस्टिंग समझ में आ गया? चलो, ऐसे करके तुम लोग अपना कितना भी एडुकेशन दे सकते हो। अब नेक्स्ट जो है दैट विल बी योर स्किल्स। ओके, स्किल्स भी तुम ऐसे ही दे सकते हो, जस्ट जैसे हमने ये वाला दिया है। इसमें बस मैंने एक हेडिंग और दिया, ऐड किया, बस तुम लोग दे नहीं नहीं दोगे तब भी चलेगा। स्किल्स ऐसे ही लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? वर्क एक्सपीरियंस। इसमें गलत दे रहा है सजेशन, एक्सपीरियंस। एंड इसके वर्क एक्सपीरियंस के अंदर तुम्हारे पास अगर है, जैसे मेरे पास है, मैं लिख सकता हूँ सेम, मैं जैसे एडमस लिखा है वैसे ही लिख सकता हूँ। वेब डेजर्ट PVT LTD, when what was my designation? Backend developer. And what are the things I have done here? I can write this inside this lead. I have done here, ऐसा करके कुछ लिख सकता हूँ मैं। अगर तुम देखोगे तो ये वाला वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा दिखेगा। एंड इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, Jan 2025 से लेके अभी प्रेजेंट, ऐसे लिखेंगे तो दिखेगा अच्छा से। ओके, चलो, वर्क एक्सपीरियंस डन, ऐसा कुछ दिखा दिया मैंने। देन अगर तुम ऐसा भी दे सकते हो, तुम लाइक इसको ना देख के अगर तुम एंकर टैग दोगे, और एंकर टैग के अंदर भी तुम ये लिखोगे, एंड अगर तुम इधर लिखोगे HTTPS, तुम इधर कुछ भी दे सकते हो, www.webdesert.in, it will redirect you to their website. Okay, this is a thing that we can do, and we can do the same thing to remove the style. We can do this. Then we have text decoration to none, and color to black, and
this will look something like this. If we click this will redirect to our page. Okay, similarly we can do for unlist. हम लिस्ट की जगह इसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते थे. ऑर्डर्ड लिस्ट होता तो हमारे पास ऐसे 1 करके लिखा हुआ था. तुम इधर समझ नहीं पाओगे, मैं इधर नहीं इधर करता हूँ. अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को छोड़ के यूएल को छोड़ के ओएल कर दूं तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा. डिफरेंस समझ गए यूएल ओएल में? क्लियर विद दिस? ओके, चलो नेक्स्ट डे. रुको, और भी मैं कुछ, बाकी तो तुम कर ही लोगे. बाकी का थिंग तुम कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी. सो दिस कैन बी योर बेसिक, you can say basic things that you can do with HTML. ओके, अगर तुम देखोगे ध्यान से, ये पूरा एक div के अंदर है, ये एक div के अंदर है, ये एक div के अंदर है, ये भी. ओके, so now there is one more thing I forgot to mention to you. I guess मैंने কোশ্চেন ছিল, बोलो. বলছি ইউএক্স মানে কি? মানে ইউএল মানে তো আনঅর্ডার্ড লিস্ট, কিন্তু ইউএক্স মানে কি? UX Yes. UX in HTML? No, UX is user experience. That is something different. That is not inside HTML. Like if you আচ্ছা, say UX is user experience. अगर सोचो कोई मेरे वेबसाइट में आ रहा है, अगर मेरे वेबसाइट में कोई आ रहा है, जैसे मैं आया और उसको फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगे देख के, ये वाला वेबसाइट कैसा लगे, वो होता है यूजर एक्सपीरियंस. एंड व्हाट इज द स्मूथनेस ऑफ द एनिमेशंस, दैट इज कॉल्ड यूआई. समझ में आया क्या डिफरेंस है यूआई यूएक्स में? হ্যাঁ হ্যাঁ UI টা কি বললে? UI यूआई मीन्स কতটা ভিজুয়ালি গুড প্লাস কতটা অ্যানিমেশন আছে বা কতটা স্মুথনেস আছে তোমার ওয়েবসাইটে, দ্যাট ইজ কল্ড ইউআই. And user experience means how much useful or easy to use your website is. Got the point? हाँ. चलो, and for अगर तुमको नया नया टैग सीखना है तो तुम जाना सिंपल MDN HTML में, और इधर जाके तुम हजारों चीजें सीख सकते हो, क्योंकि HTML is a self learning thing. मैं तुमको एक हद तक सिखा सकता हूँ जो मेन चीजें हैं, जैसे div हो गया, जैसे एक दूसरा हम अगले में सीखेंगे which is table, and the next thing we will learn is forms. These are the 3 things that I can make you understand, but उसको छोड़ के भी बहुत कुछ है जो तुम सीख सकते हो. मैं खुद भी याद नहीं रखता बहुत सारे टैग्स, मैं इधर आके देख लेता हूँ. Like if you go to elements, there are multiple elements, you can see multiple, like खत्म ही नहीं होगा, इतना है. फिर एट्रीब्यूट्स भी बहुत कुछ है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी हैं. ये सब डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऊपर, कितना तुम ले पा रहे हो, कितना तुम सीख रहे हो डेली. दिस इज अप टू यू. और हाँ, ये डॉक्यूमेंट का टैग भी हम हटा सकते हैं. जैसे हम इसको अगर पोर्टफोलियो बोल दें, पोलियो, और वी कैन से बेसिक रेज्यूमे, so that it will be like this. Okay, chalo, this is clear to you? The basic thing is clear to you? Yes. Okay, so there is 2 things that I have to make you understand, is inline and block. These are the 2 terms that you will deal when you will go to CSS frameworks. Okay, मेरे को जस्ट एक बार रुको, मैं अपना iPad कनेक्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए. टाइम क्लियर. चलो, ये मैंने पिछले दिन इनको समझा दिया था, मैं भूल गया था. चलो, तुम ये दोनों
देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये पिक्चर और ये पिक्चर देख के क्या समझ आ रहा है तुमको? What you can একটা understand? লাইনের মধ্যে আছে এটা, মানে একটা হরাইজন্টাল লাইনের মধ্যে 3টে শো হয়েছে, আর আর এটা 3টে ডিফারেন্ট রোজে শো হয়েছে। হ্যাঁ, তো এটা থেকে কি বলতে পারি? ব্লক এলিমেন্ট কি বলছে? ব্লক এলিমেন্টস মানে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোজে শো করতে পারি জিনিসগুলোকে, আর ইনলাইন মিন্স উইদিন আ সিঙ্গেল রো আমরা সবকটা জিনিসকে দেখালাম। Uh, exactly not the same, but you got it the correct way. When we are using a div, it's using a full length of your website. देखना, जब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तब अगर मैं देखा हूँ तो ये जो मेरा नाम है ये बस इतना सा है, बस मेरा इतना सा है नाम, बट ये क्या कर रहा है? पूरे लाइन को यूज कर रहा है। बट হুম दिस इज नॉट गुड। जब हम CSS करेंगे तब इसको हम फिक्स करेंगे, बट ये होता है तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए मैं अगर पूरा लाइन छोड़ रहा हूँ, लाइक दिस इज द अनयूज स्पेस, राइट? ये वाला হ্যাঁ यूज कर सकते थे इसको रखने के लिए, बट ये वाला तुम्हारा खाली है। सेम ये वाले एक एलिमेंट डिव, ये भी डिव, ये लोग क्या कर रहे हैं? पूरे एक एक लाइन को यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में। बट इनलाइन क्या बोल रहा है? मेरे को जितना चाहिए मैं उतना ही यूज करूंगा, बाकी उसके बाद आ जाना। एग्जाम्पल देखोगे? ये देखो, अगर तुम देखोगे इधर, जैसे ही मैंने वर्क एक्सपीरियंस में, ये देखो ये पूरा एक डिव है, H4 टैग है, हेडिंग टैग है, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे एंकर टैग इसने इनलाइन में लिखा है, इसको जितना चाहिए था उतना लिया है, बाकी H4 को दे दिया। यू गॉट इट? डिफरेंस समझ में आया इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में? क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग इन योर वेब पेज। If you understand this thing, so you can see other things I have already done. So these are the basic thing that you have to understand, and these are the two type of tags. You remember these tags, right? Semantic tags and non-semantic tags. याद है ना सबको? एक बार नहीं तो याद नहीं है तो पढ़ लो, पढ़ के बोलो अगर समझ में नहीं आ रहा, then I will say. Other than that, we are complete with our revision and div and basic divs and the anchor tags. We will move to next is table, then we will go to forms. So maximum time we need for forms. So table, I need one more class, it will be completed tables. सबको समझ में आ रहा है कि ये सिमेंटिक टैग है, नॉन सिमेंटिक टैग क्या है? হুম चलो, हाँ so okay, so okay, today's we have done this all of these things. तुम लोग का काम क्या रहेगा? तुम लोग ही बोलो क्या करोगे तुम लोग? ये सेम चीज बना के लाओगे जो मैं बना रहा था अभी? You all will do this resume type thing or you will do something else? क्या करोगे? You all decide. ये वाला ही रेज्यूमे यही वाला होगा। यही वाला करोगे, ठीक है। चलो तुम लोग ये वाला करके लाना नेक्स्ट আর এবার क्लास। আগের যেটা দেওয়া আছে ওটাও তো করতে হবে। ওইটা বা এটা যে কোনো একটা, দুটোই তো সেমই তো দেয়া আছে, বাস একটু একটু ডিফারেন্স আছে আচ্ছা সেকশনসের ঠিক মধ্যে। আছে। You can do the thing that I have given you previously in WhatsApp, or you can do this also. I was saying about this. ये वाला भी कर सकते हो तुम, ये वाला भी तुम कर सकते हो, या ये वाला करोगे, कोई भी एक कर सकते हो, अप टू यू। नो प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। আমার बोल बोलो। এ ট্যাগের জায়গাটা একবার ए टैग, ए टैग, এই তো এ ট্যাগ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে।
আমি হ্যাঁ আমি এই ফাইলটাও শেয়ার করে দিচ্ছি, নো প্রবলেম। আমি এই ফাইলটাও শেয়ার করে দিচ্ছি। সো ইউ হ্যাভ টু ডু এনি অফ দিস টু বিফোর ফ্রাইডে। ওকে, ফ্রাইডেতে আমি সবাই এক এক করে নিজেদের স্ক্রিন শেয়ার করবে অ্যান্ড আই উইল সি সবারটা। ক্লাসটা কবে হবে? নেক্সট ক্লাস অ্যাজ পার শিডিউল দাদা ফ্রাইডে। কি করব ফ্রাইডেতে? ফ্রাইডেতে আমি যেটা আগে কাজ দিয়েছিলাম এইটা এইটা কিংবা এইটা, মানে যেটা আজকে করাইছে, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা भैया एक बार बांटना। हाँ मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। भैया मैं एक बार कोड शेयर करिए ना जो आप लिखे थे। मैंने शेयर कर दिया जस्ट। एक सेकंड, मैं 2 days वाला लिख देता हूँ। 2 days, okay, these are the two things that you have to complete before coming for to Friday. Okay, as per schedule we have next class on Friday, same from 7:30. So meet you at that time. If you have now, if you have